Here we go. हाँ जी एंड वेलकम बैक. मेरे साथ एज यूजुअल बहराम है. कैसे हो ब्रो? यार सच्ची बात बताऊं तो आई हैड रियली टफ टाइम गेटिंग माई सेल्फ आउट ऑफ बेड Same here, man. It was tough. I mean, my city is hurting, and so I am hurting, and The people are hurting, man. The people are hurting. There's a helpless feeling which has surrounded the nation, I suppose. और यार मतलब cricket at times like these feels a bit secondary, Sadi. But of course, ये हमारी नौकरी है. We have to remain professional, and there is a match to talk about. We have to remain professional and remain unbiased, unlike many other people. Absolutely. कुछ लोग तो फायदा उठा रहे हैं इस चीज़ का अपनी दुकान चलाने में. And it's really unfortunate to see. But overall, you know, even though Pakistan defeated Zimbabwe by 10 wickets. Bro. 146 runs आपने 18.2 overs में chase किए हैं. It was as good as it gets, even if it was Zimbabwe. But वो मजा नहीं आ रहा क्योंकि obviously mood थोड़ा down है. But we'll fix that. Of course, this podcast always fixes that. हाँ. अच्छा शुरू करते हैं एक ही बंदे से. मेरे लिहाज से बाकी सारी चीजें साइड पे रखो. सयाम अयूब. Yeah. Bro. Announced himself. I mean, he had announced himself. I would say Australia के खिलाफ भी. Australia के खिलाफ भी कर दिया था. लेकिन third fastest to a century by a Pakistani batter. Yeah, I mean, it's insane. Regardless of the opposition, regardless of the conditions, that is the brand of cricket Saim Ayub plays. And that's the brand of cricket that Pakistan should be playing in limited overs moving forward. और invest इसीलिए इस पे इतना ज़्यादा किया है. In a way, he's paved the way, right? किस तरह आपने आगे जाकर खेलना है और बड़ी brash arrogance दिखाई, a lot of elegance on display as well. Look, he got to his 50 in 32 deliveries, and then he got to 100 of 53 deliveries. Which, as you mentioned, is the joint third fastest century for Pakistan in ODI cricket. तीनों fastest जो हैं वो लाला की हैं. शाहिद अफरीदी, big man, big name. It's a leg by. Who cares? Way ahead of his time, man. Yeah. Proper time traveler. But anyway, Saim ultimately ended up with 113. Unbeaten था वो 62 deliveries में. It was a fantastic knock. जो उसने अपनी range display की है. I know we've covered his range plenty of times on the podcast. But you know, all those drives. Cover drives were brilliant. Scintillating drives. Cut मारे उसने. चपेड़े मारी. Slaps. Proper slaps. और वो obviously no look. No look. Heave type चीज भी थी. Pull shot भी थी. Heaves over mid wicket भी थी. The shot that he got to a century with. Played all over the park. That was a heave to mid wicket. And one thing that I really liked about Saim, and I've picked up on this recently, is that, you know, we weren't particularly sure about his spin game. हमारा शेख जो है Janis of the podcast में, he even raised this point earlier, and I saw Saim deploy both the slog sweep and conventional sweep to great effect. बहुत अच्छे तरीके से उसने वो shots execute किए हैं, and he got his rewards for them. What was it, Sadi? 17 fours and 3 sixes? Something like that, right? 16 थे शायद चौके. 16 थे या 17 थे, मुझे वैसे 17 याद पड़ रहा है. And 3 sixes. So I mean, it was a highlights package which was littered with boundaries. और Saim ने modern cricket खेली है. Like I said earlier, यार मतलब उसने आपको template बनाकर दिखाया कि इस तरह में खेलना पड़ेगा लिमिटेड ओवर्स में. एंड ही इज जस्ट सो अट्रैक्टिव टू वॉच, मैन. फ्री फ्लोइंग बैट. जब वो आता है ना फॉर्म में, जब उसकी लग रही होती है, बहुत मजा आता है. ही इज अ साइट फॉर सोर आइज. लेफ्ट टू तो फिर तुझे पता है वो तो हमारा बायस ही एक तरह का. बट हाँ, वो मलाई की तरह शॉटें आती हैं. वेरी वेरी इजी ऑन द आई. एंड वन अदर थिंग दैट आई रियली लाइक अबाउट साइम इज दैट ही इज वेरी क्विक to judge and pick up length, which is why he sets himself up. And I mean, I feel like अभी अगर तुम देखो ये जो पोस्ट क्या कहते हैं, सर्जरी ऑपरेशन व्हाटएवर, रिजवान की कैप्टनसी ओडीआईज में कह लो. रिजवान एरा में तो ठीक है, बहुत कम टाइम अभी हुआ है, मगर साइम अयूब इज प्रॉपर लाइक फीचर. Right? And he has really staked his claim. And people will say Zimbabwe ये वो है यार. पिछले मैच में भी Zimbabwe ही थी. ठीक है. और look, 5 मैचेस हुए हैं रिजवान की कैप्टनसी के अंडर. हाँ. 3 जीता है पाकिस्तान. और तीनों जो है ना, ये दानियल रसूल ने पॉइंट आउट सिमिलर फैशन में जीता. सेम फैशन. सिमिलर क्या, आइडेंटिकल फैशन. यू बोल्ड द ऑपोजिशन आउट चीपली अंडर 200 and then Saim Ayub comes and kills off the game. That's how Pakistan have won each of these 3 ODIs. With Abdullah holding the fort at the other end. Abdullah did hold the fort, right? तो आपने 5 में से 3 जीते हैं अभी तक, और आप 2 हारे हो. एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, एक जिम्बाब्वे के खिलाफ. And you know, Daniel also mentioned कि Pakistan will have to figure out multiple ways of winning ODIs. जैकेट झड़ रही है तुम्हारी. जैकेट मेरी बहुत झड़ रही है. मुझे पसंद बड़ी थी यार, लगता है वक्त निकल गया. It's time to let it go. It might be time to let it go, man. Or can you like re-leather this sort of stuff?
मे बी लेदर वाले से पूछना पड़ेगा. हाँ लेदर वाले से पूछना पड़ेगा. पैचेस लगा दे, कुछ कुछ कर दे. मुझे रंग बहुत पसंद था. सही आर्ची कॉमिक्स वाइब्स आती हैं इस जैकेट से. Jockey style. Yeah. jacket, But yeah. anyway, to Daniel's point, he was like Pakistan will have to figure out multiple ways of winning games of cricket. और ODIs के अंदर अभी ज़्यादा important भी है क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी आगे आ रही है. सही है. Now, एक तो ये तरीका हो गया. Bowl the opposition out cheaply and then it's not much of an issue. वो तो साइम ही पूरा कर देता है. एक और तरीका पाकिस्तान के लिए ये है कि यू पुट अप ए स्कोर एंड देन यू डिफेंड दैट टोटल एंड यू नो टू गिव देम सम क्रेडिट ओवर हियर दे ऑलमोस्ट डिफेंडेड 200 ऑड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सो दैट इज अनदर वे दैट पाकिस्तान कैन विन गेम्स ऑफ क्रिकेट. लेकिन जब ऑपोजिशन बड़ा स्कोर डाल दे जिस दिन फिर क्या करोगे? फिर मुश्किल है. और ऑल्सो हाउ फ्रीक्वेंटली कैन पाकिस्तान बी दैट ऑपोजिशन. लेकिन जो पाकिस्तान हो बड़ा स्कोर डालने वाली टीम, कैन दे बैट टीम्स आउट ऑफ अ गेम? बिकॉज Sime Ayub is critical to that. हाँ, he is absolutely imperative. And you know, टेस्ट क्रिकेट में ना 20 विकेट्स इज द मेन थिंग. आपको 20 विकेटें लेनी है, इसी तरह आप जीतोगे. यू कैंट पर्टिकुलरली लाइक sure there are some instances where teams declare और फिर opposition chase कर देती है, but batting an opposition team out of the game is not like very common in test cricket. It's very rare. ODI cricket में तो है. दोनों limited overs cricket. I think इस दौर में white ball cricket में कह लो, white ball you cricket में need to outscore the opponent. You have to, and also you know England को देख लो, all their success that they've had. ठीक है, अब तो थोड़े फारिग हो गए हैं, मगर बीच में जो इनकी white hot revolution आई थी, they were batting teams out of the game, right? India को आजकल देख लो, what they're doing in T20 cricket, they're batting opposition teams out of the game. So this is something that I feel Pakistan cannot do. But जरासीम नजर आए हैं साइम में. It's just that you know पता है कि स्कोर कम है, एक थोड़ा प्रेशर रिलीज हो जाता है उस चीज से. ये तो 200 से भी कम था, इवन दो यू कुड मेक एन आर्गुमेंट कि पिछले मैच में भी कम था. दिस वाज रियली रियली लो. लाइक आई कुड नॉट सी अ वर्ल्ड इन व्हिच पाकिस्तान डज नॉट चेस डाउन 146, बट द फैक्ट दैट दे चेस्ड इट डाउन इन 18.2 ओवर्स, with 10 wickets, दे गॉट टू 50 in 8 overs. इससे पिछले मैच में 10 ओवरों के अंदर 27 रन थे, 2 विकेट. 27 for 2 थी पाकिस्तान, और यहाँ पे 50 for no loss थे 8 overs में. दैट्स अ बिग स्टेप अप. आई थिंक दैट्स अ मेजर टेक अवे फॉर पाकिस्तान, एंड आई एम नॉट सेइंग कि ये बदल दी इन लोगों ने चीज, मगर आपको ना जब आपका buy-in बनता है या players buy-in, you need some sort of performance to build off of. कि यार याद है उस दिन जो किया था. This could be that game, right? I mean, पहले भी किया है. हाँ, ऑस्ट्रेलिया वाली ODIs में भी यही किया है. I would love Pakistan to, you know, approach the game this way in the first innings. That's what I really want to see, because वो एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं गैप है पाकिस्तान की लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट के अंदर, which needs to be filled. I think उसके लिए थोड़े से टीम कॉम्पोजिशन कॉम्बिनेशन को देखना पड़ेगा. अभी भी आई एम नॉट टू कन्विंस्ड विद द. You got your wish though. Tayyib Tahir replaced Nasibullah and he was batting in his right position. I wouldn't have taken out Hasnain though, लेकिन I wanted Abrar in. हाँ, तो मैं अब्रार चाहिए था, और हसनैन और रऊफ में से कोई जाना था, क्योंकि हमें पता था कि आमिर जमाल को बैटिंग के लिए खिलाएंगे. They want that security. I still feel आमिर जमाल जो है ना वो न्यू बॉल बॉलर नहीं है. हाँ, मुझे भी नहीं लगता. लेकिन चलो I didn't mind that decision too much क्योंकि spin, क्योंकि Bulawayo. I loved the fact that they opened the bowling with Abrar from the other end. I was thinking कि शायद साइम से ट्राई करें. भाई Bulawayo में है ही spin to win. इस मैच में तुम देख लो 10 विकेटें गिरी हैं, 9 of them fell to spin. पाकिस्तान नहीं बोली है. एक रन आउट हुआ, जो by the way it was once again between Joy Lord Gumbi, the Lord of all joy, and Marumani, the wicketkeeper. That pair has some major communication issues. They need to sort those out quickly, क्योंकि 2 ODIs में 2 रन आउट हुए हैं. एक में पहले वाले में गुम्बी हो गया था, इस दफा मारूमानी हो गया. But point being, I know his name is Gumbi. मगर तुमने गंबी बोला. मैं गंबी बोलूंगा. तुम फ्यूजन के ड्रमर को लाना चाहते हो कॉन्वर्सेशन में. Not only fusion, वो नूरी का भी होता था. ओ हाँ, शायद नूरी का ही था. Have I messed this up? फ्यूजन का नहीं होता था. फ्यूजन का नहीं होता था. फ्यूजन का वो शालम जेवियर होता था गिटार पे. Yeah, I mean, sure. I'm going to call him. एक थर्ड बंदा होता था. I'm sorry, उसका नाम नहीं मुझे याद. वो मुझे भी नहीं याद. शफकत तो सिंगर था. हाँ, शफकत तो याद ही है. तीसरा बंदा मुझे शक्ल भी नहीं याद आ रही. Sorry, third fusion person. But yeah, it's funny how both of those guys keep wicket as well. Lord of all joy and Marumani, and they were opening the batting. और इस दफा तो खैर जल्दी आ गया रन आउट. And fantastic work by Tayyib Tahir. That was a really, really good piece of work in the field. And he's a really good fielder. He is, isn't he? And a lot of people have raved about him over the years. एहसन इफ्तिखार नागी की ट्वीट आई हुई थी जिसमें वो मेंशन कर रहा था किस तरह कोई न्यूजीलैंड के खिलाफ जब मैच था, he was a sub fielder and he forced a run out over there as well. So that's something to look out for. Tayyib Tahir in the field. His size might not
maybe scream athlete. I'm trying to not fat shame over here. I'm just saying that he doesn't look like a proper athlete. build जो है ना उसकी. But Fox in the field, right? And वो तो बैटिंग में चलो मौका नहीं मिला, पाकिस्तान 10 विकेटों से जीत गया. But I hope to see him score some runs as well because he has been a domestic performer. But हाँ, Bulawayo में इस दफा they knew what the conditions will be. They went in with 3 frontline spinners. 2 frontline spinners and 1 Salman Ali Agha who's been bowling like a frontline spinner. And Saim Ayub. Yeah, and Saim Ayub. So they had 4 options with the spin. लेकिन मुझे इशू पता है कि Bulawayo को अगर थोड़ा सा की स्टडी कर लेते ना तो वो तो स्पिन ही चलती है. लास्ट मैच भी स्पिन हेवी और जाना पता है बड़े लोग मुझे ये बात भी कह रहे थे ट्विटर पे व्हेन आई वाज पॉइंटिंग आउट हाउ द विकेट इज टेकिंग अ लॉट ऑफ टर्न अर्ली ऑन इन द प्रीवियस गेम कि यार जब यहाँ आईसीसी नॉकआउट्स हुए थे वो जो नहीं होता वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन वाला टूर्नामेंट उसके अंदर यू नो ठीक शना एंड हसरंगा दे स्पैन spun the ball a mile, and that's how Sri Lanka was completely obliterating opposition team. So I mean, again, आपने थोड़ी सी research की हो अगर तो आपको ये चीज शायद पता होती. And you could have, you know, maybe selected Arafat Minhas as well, because अगर तीनों मैच बुलवेयो में ही थे सादी तो फिर ये तो आइडियल सीरीज नहीं थी अराफात के लिए. This was the series for This was the series. लेकिन खैर अबरार अहमद आ गया. अबरार अहमद ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई. अबरार अहमद शानदार परफॉर्मेंस यार, and to come back from the low that he had just experienced, you know, breaking down versus England in that मुल्तान टेस्ट जिसमें कोई 850 रन पड़े हैं पाकिस्तान. बेचारा अगर वही अबरार अहमद सेकंड टेस्ट में होता he could have caused them some trouble. उस बेचारे की शक्ल उतर आई थी. ठीक है, he was absolutely floored. Bro, क्या चिकनगुनिया हो गया था उसे? हाँ, उसको बीमारी भी हो गई थी. And you know, watching him just bowl versus England, जिस तरह they were taking him down, it was honestly. उस pitch पे I do not blame any bowler. I don't really blame him entirely. And ठीक है, the jury's still out on what sort of asset Abrar Ahmed can be for Pakistan. Is it just a limited overs bowler? Does he still have a future in Test cricket? I believe. I also wouldn't write him off too quickly. And you know, सही है, मिस्ट्री बॉलर है, उंगली से लेग स्पिन कराता है. उंगली से? हाँ, रिस्ट स्पिनर तो नहीं है ना. ही इज अ रिवर्स मेंडिस. ठीक है, तो देयर इज एवरी चांस ऑफ दैट सॉर्ट ऑफ क्रिकेटर बीइंग फाउंड आउट. बट देन यू इवॉल्व. आप साथ साथ अपनी आर्टिलरी जो है बढ़ाते हो. अगर इसका करियर देखे ना बेराम, तो आई बिलीव ही इज वर्कड ऑन हिमसेल्फ और इवॉल्व किया है. क्योंकि जब ये पहले आया था ना पीएसएल में, वाज इट द 3rd सीजन और द 4th सीजन? यार हाँ, शुरू में आ गया था पेशावर ज़ल्मी के लिए. he did really well up front. हाँ, उसके बाद बड़ा लीन बैच आ गया था इसका. कराची किंग्स भी गया, कुछ नहीं कर सका था. उसके बाद ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन हिमसेल्फ. फिर टेस्ट में उसने डेब्यू किया, फर्स्ट क्लास में बहुत विकेटें ली थी इसने. फाड़ के रख दी थी फर्स्ट क्लास में. फिर पीएसएल में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लिया. बेचारे को ज्यादा गेम टाइम नहीं मिला, लेकिन जब भी बॉलिंग कराई इसने, ही लुक्ड इंप्रेसिव. यार अभी चैंपियंस कप में भी इकोनॉमी रेट वाज गुड, वाजंट एज इंसाइसिव. बट यू नो, going back to that first class season that he had, I don't know, कुछ 70 विकेटें ले ली थी इसने. और I remember I was working for grassroots cricket at that point, and England was about to tour Pakistan, the original baseball tour. And I made video features on how Abrar Ahmed should be primed for a debut. And then he did go on and take 11 wickets after they chose not to play him in Rawalpindi. Because वो सैकी भाई कुदरत के निज़ामी जो है वो कहते थे कि Zahid has been waiting for longer. Which I still to this day do not understand. It is absolutely bonkers, right? कि वो बंदा देर से वेट कर रहा था. अच्छा, अगर देर से वेट करने की बात थी तो फिर कामरान गुलाम के साथ तो बहुत देर की है. साउथ शकील के साथ तो आपने बहुत देर की है, right? Huraira को आपने चांस ही नहीं दिया. Like there's so many things that you can bring up. Huraira was in the squad before Saim Ayub, and Saim Ayub debuted before Huraira, right? So all of this stuff is bullcrap. You play your best 11. You play your best 11. And Abrar deserve to be part of the 11 over here. तो सही खिलाया उसे. और मतलब यार इस तरह की चीजें तो हम लिटरली उधर करते हैं हाई वेलोसिटी में जब खेल रहे होते हैं. बिल्कुल कि यार तू भी खेल ले, बैटिंग कर ले. एब्सोल्युटली वहां पे ये फोकस होता है कि यार सबने पैसे दिए हैं, कोई रह ना जाए. यू नो, मैं अक्सर बैटिंग ही नहीं लेता यार, ज्यादातर बल्कि मैं बैटिंग नहीं लेता, मगर मैं ओवर ले लेता हूं, हमेशा ले लेता हूं. मेरे से भी छीन लिया था इसने, बेशक टीम हार क्यों ना रही हो. But yeah, I mean, look, I loved the fact that he opened the bowling and he was getting a lot of purchase. Obviously, he took 4 for 33 on ODI debut, which is the best debut performance by a Pakistan bowler since Abdul Qadir, जिसने I think 4 for 21 लिए थे like 40 years ago. 1983 का World Cup चल रहा था. That's when Abdul Qadir debuted in ODI cricket, and that's when he took 4 for 21. By any bowler or by a spinner? No, by any Pakistan bowler. Damn. Yeah, not spinner. So that is
a good one to have. Faisal Akram just took 3 for 24 in the previous game on debut, and he was introduced a touch too late in this game for my liking. मैं भी यही सोच रहा था यार, समझ नहीं आई कि आपने 23rd ओवर तक उसको क्यों बचा कर रखा है. बीच में वापस राउफ और आमिर जमाल आ रहे थे ना, इसकी जरूरत नहीं. You don't need to go with pace. आपने जो आप ऑस्ट्रेलिया में कर रहे थे ना पेस के साथ, यहाँ आप कर सकते हो स्पिन के साथ. 4 स्पिनर्स हैं. हाँ, आप लिटरली जस्ट go for the kill with spin. That was the obvious thing. नहीं खेली जा रही थी उनसे स्पिन ब्रो, गज स्पिन हो रही थी बहुत. यार फैसल ने भी विकेट ले ली, फिर एक साइम ने विकेट ली, उसने आई थिंक शॉन विलियम्स को आउट किया था. सयाम बोला. हाँ, सयाम अयूब took a wicket and scored that ton, so he was deservedly player of the match. हाँ, उसमें वो विकेट ना भी लेता तो 100 पे बन जाना. It was just an innings that you don't really expect from Pakistan batters, right? कि आप like आफरीदी से expect करते थे, मगर इस तरह 53 बॉल्स में आकर 100 मार देना, भाई वो जिम्बाब्वे क्या वो USA क्यों ना हो. I would still be surprised and I would still be pleasantly, surprised नहीं कहना चाहिए, but मुझे खुशी मिलती है इस चीज से कि मुझे लगता है कि यार चलो कोई उम्मीद है. There is some sort of hope. उम्मीद की किरण या कि पाकिस्तान जो है वो शायद मॉडर्न डे क्रिकेट पे अडेप्ट कर ही जाए. स्टिल अर्ली डेज एंड बाय नो मींस आर वी सेइंग कि हो गया. द ट्रांजिशंस डोंट हैपन ओवरनाइट. दे टेक टाइम. दीज ट्रांजिशंस टेक अ लॉट ऑफ टाइम. अगर आपको याद हो हमारा पॉडकास्ट हिमनीश गंजू के साथ, इंडिया के जो डेटा एनालिस्ट थे, उन्होंने भी बताया था कि यार बड़ा टाइम लगा था इंडिया को एक्चुअली इसको फिगर आउट करने में एंड फॉर द कंप्लीट और एंटायर स्क्वाड टू बाय इनटू इट एंड देन एग्जीक्यूट दोस प्लान्स इफेक्टिवली. These are processes which need to be followed consistently and there will be failures. कल को शायद पाकिस्तान अगर पहली इनिंग्स में तेज खेल रही हो तो 110 पे आउट भी हो सकती है. आपको पेशेंट रहना होगा वहां पे if you actually want them to change their approach. And Saim Ayub, like Saad pointed out earlier, could be at the forefront of this transformation because he has the game for it. He has the game. He has the range. He has the power hitting game. सिर्फ बैटिंग में नहीं है ना ब्रो, फील्डिंग में भी है और बॉलिंग में भी है. He is quite three-dimensional in that regard. और यार he's got flair. Handy है यार. He's got an interesting personality. He speaks well as well. तो आप जब भी वो कुछ बोलता तो मैं कहता हूँ चलो यार सुनते हैं साइम बोल क्या रहा है आखिर. और I've been low-key impressed with him. This is a guy जो PSL में थोड़ा जल्दी इंट्रोड्यूस हो गया था और बहुत बुरा खेला था, याद है क्वेटा के लिए. उसके बाद we've seen him flourish and develop into whatever he is today. But do keep in mind that Saim Ayub is still 22 years of age. He is still some way away from that age of batting maturity. He is no Yashasvi Jaiswal, even if some cloud-chasing Pakistan journalists will make that comparison. कोई मुकाबला नहीं है. But Saim Ayub is still a special talent. I said like what, one notch below S tier? I don't know man. Based on potential. अगर सिर्फ पोटेंशियल की बात करते हो ना तो फिर तो है यार. मुझे उसके अंदर वर्क एथिक तो नजर आता है. He puts his body on the line in the field, throws himself around, point पे फील्डिंग कर रहा होता है. पोटेंशियल तब आपकी मैटर करेगी ना जब तुमने एग्जैक्टली ये बोला. इफ यू पुट इन द हार्ड यार्ड्स ऑफ द फील्ड तब आप एस टियर बन सकते हो. और साइम अयूब को आगे फेम भी मिलेगी. हाउ ही डील्स विद दैट फेम, with a dip in form. Yes. ये सारी चीजें गालियां जब पड़ेंगी उसे सोशल मीडिया पे कैसे डील करता है उसके साथ. बिल्कुल. जब सपोर्ट बहुत ज्यादा मिलेगी, लड़कियों की अटेंशन मिलेगी तो क्या करेगा. जो कि बल्कि CPL में देखा भी है बहुत ज्यादा अटेंशन मिल रही है. There was this one Guyanese fan who wanted to marry him, right? So which was cute. हाँ, so ये सारी चीजें फैक्टर इन करती हैं. अब if he is able to handle it, which I believe he has the capability to do so, तो फिर तो ये जा सकता है बहुत ऊंचा यार. I just hope that he remains laser focused on being one of Pakistan's top batters. Accolades साथ आ जाएंगे. आप परफॉर्मेंस अपनी आप रखो और जब परफॉर्मेंस लाइक साथ से डिप भी होती है तो आप एक्स्ट्रा मेहनत करो. You work out the chinks in your armor and he seems to be an intelligent bloke. Seems to be. ठीक है, लगता तो समझदार है. Hopefully he can continue. और पता है, I'm happy that Pakistan have kept the faith in him. I'm surprised that he's not part of T20 plans as of now because I would have him, right? अभी वो अपने गौरव नंदन त्रिपाठी ने बोला हुआ था कि कौन से पाकिस्तानी प्लेयर्स IPL ऑक्शन में जाते. तुमने जवाब दिया बिग मनी में जाते. Yeah, Saim Ayub was maybe not big money but he would be sold if we lived in that world. हारिस रऊफ पोटेंशियल, छोटे हारिस का ही पोटेंशियल था मगर हारिस रऊफ ऑफ कोर्स. नसीम शाह, Fakhar Zaman, Saim Ayub. And Shaheen maybe. Shaheen, if he gets his pace back up, he'll be basically. If Shaheen gets his pace back up, he would be a very expensive buy in the IPL because उससे बहुत फर्क पड़ जाता है. वही lateral movement अगर उसकी with pace हो तो जहाँ चौके पड़ रहे होते हैं अभी वही फिर खेली नहीं जा रही होती. But yeah, I mean, I have big expectations from Saim Ayub, but hopefully Pakistan will continue to give him a longer rope. क्योंकि अगर आपने अपनी क्या कहते हैं
what's the word Development over here, करनी man? है। Development नहीं यार, what I'm trying to look for over here is कि हाँ, अगर आपने ethos अपना बदलना है, हाँ। तो फिर आपको इस तरह के प्लेयर्स आइडेंटिफाई करने हैं who have the game to do it. अब बैस बॉल चलती पता है क्यों है? क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज हैं बैस बॉल वाले. Not every team can बैस बॉल. मतलब रिसोर्सेज भी उन्होंने उस तरह बनाए हैं ना. बिल्कुल. मतलब I'll be honest, ऑली पोप नहीं फिट होता काफी ज्यादा टीमों में. अब तो आई थिंक इंग्लैंड में भी नहीं होता. लेकिन खेल रहे हैं ना अभी. लेकिन उसको they stuck with him because they know कि किस तरह की ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलता है वो. Zach Crawley is another one. Zach Crawley is a perfect example. Zach Crawley सिर्फ हमें मारता था. नहीं, उसकी एक और चीज भी है कि he will be mediocre most days, but then every now and then he'll play a special knock. But to Crawley's क्या कहते हैं credit, he has started to score those 40s and 50s and 60s. अब वो भी करने लग गया. तो देखो आपने टाइम दिया ना, तो Zach Crawley has also found his feet. कुछ प्लेयर्स होते हैं जो फर्स्ट गेम ऑन देयर प्राइम फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट, they don't need time, they like we're here to own तुम it. जायसवाल को देख लो. Exactly. We all know he's young and maybe like probably most definitely hasn't reached his age of batting maturity. But like what is his ceiling? हम बता ही नहीं पा रहे क्योंकि he's literally taken to test cricket like a fish takes to water. So right? Exactly, जायसवाल हो गया, गिल हो गया, और भी इस तरह के बहुत ज्यादा प्लेयर्स हैं जो फर्स्ट डे ऑन दे नो देयर प्राइम फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट. आई एम हियर मैन. कुछ लोग होते हैं जिनको थोड़ी सी लंबी रोक देनी पड़ती है. अब आपने देखा ना, और एक तीसरी कैटेगरी भी होती है. सॉरी, तीसरी कैटेगरी होती है देयर brilliant domestic players, but they cannot cut it in international cricket. Absolutely, you've got a fair few of those kind of players as well. But Saim को ना अब आपने system में रखा है थोड़ी देर. You've kept him close to the team. You've given him consistent opportunities, albeit you have removed him from the T20 setup, which doesn't make any sense. But अब आप देखो कि वो चीज रंग ला रही है. You're getting the fruits of your faith, not even labor. Faith. अभी you know सिर्फ start हुआ है. You never know कि ये डिप करता है या ऊपर जाता है. Hopefully ये इस तरह रहे तो ये बहुत ऊपर जा सकता है. इंटरनेशनल क्रिकेट में या किसी भी स्पोर्ट में, ठीक है, वो डोमेस्टिक लेवल पे भी क्यों ना हो, more often than not you have crests and troughs. आपकी करियर्स इस तरह जाते हैं यार. हर कोई भी ऐसा एक प्लेयर बता दो मुझे जो बस सीधा ट्रेजेक्टरी उसकी ऊपर ही जाती है. For his first 30 टेस्ट मैचेस मार्नस लाबुशेन, उसके बाद सीधा गिर गया to a point where he might even be dropped now, right? And, you never know. And I would get it if they drop him. ठीक है. और साइम अयूब का बस ये यार, अभी not too long ago when he wasn't performing in T20s, everyone was on his case को निकाल दो, उसको कट दो, ये wasted talent है, he's another Heather Ali, yada. He's too young for that, man. यार थोड़ा सा हौसला रख लिया करें. और ये भी मतलब नहीं कि आज उसने 53 बॉल टन मार दी है तो ही इज द बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस ब्रेड. नो, साइम अयूब स्टिल हैज अ लॉट टू वर्क ऑन. उस दिन उसने गलत ड्राइव मारी है, ठीक है, वो बॉल ड्राइव मारने वाली नहीं थी जिसपे वो आउट हुआ है, और वो ड्राइव पे ससेप्टेबल है. ठीक है, उसकी भी फ्लॉज हैं गेम में. अभी मैंने नोटिस किया जो स्वीप्स और स्लॉग स्वीप्स जो उसने एम्प्लॉय किए हैं, स्वीप्स खास तौर पे, स्लॉग स्वीप मुझे पता था, मगर जिस तरह उसने स्वीपें मारी हैं, दैट्स गिवन मी होप कि ही कैन आल्सो यू नो काउंटर स्पिन वेल, एंड दिस ऑगर्स वेल फॉर हिम अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स. यू नो, हर जगह स्पिन तो खेलनी पड़ेगी भाई. एग्जैक्टली. और टेस्ट में ज्यादा खेलनी पड़ेगी. T20 में शायद थोड़ा कम, क्योंकि पावर प्ले मैक्सिमाइज करना उसकी नौकरी है, मगर वो तो उसको अभी चांस ही नहीं मिल रहा. राइट. अगर इनको थोड़ी सी अकल आ जाए तो they would keep Saim Ayub in Zimbabwe and give him the T20 eyes versus. नहीं रखेंगे. नहीं. Who is even opening in that series? What, साहिबजादा फरहान वापस आ रहा है? और उस्मान खान होगा probably. Yeah, I suppose so. और सलमान अली आगा will be captaining that series. अभी छोड़ दे साथ ही. We'll come to it. नहीं आ जाएंगे, लेकिन मेरे दिमाग में अब कीड़ा आ गया ना. खुरक हो रही है तुम्हें. खुरक होगी कि T20 का क्या स्क्वाड था. खुरचन हो रही है. खुरचन. Is that even a word? I don't know. Yeah, I'm a bit dazed today, guys, and you can understand my city is hurting, right? चलो चल ही नहीं रहा नेट. चलो जी, नेट भी नहीं चल रहा. एक तो ये भी बड़ा हुआ है. As someone who records podcasts for a living, it is a really hard one to explain to the employers. खास तौर पे like good areas is international, right? So समझ जाते हैं वो, but I have to give them like updates कि अच्छा ये अब सुनने को मिल रहा है, वो अब सुनने को मिल रहा है, शायद मेरा इंटरनेट चला जाए. एक रात गया भी था इंटरनेट. तो यही चल रहा है इस मुल्क में तो फिलहाल. disruptions on disruptions. It's really really sad to see where Pakistan is headed because. अच्छा, क्रिकेट पे वापस आ जाओ. अगर ये लोड हो गया तो हो गया, वरना मैं बात करना चाहता हूँ साइम के पार्टनर की, अब्दुल्ला शफीक. Proper foil to Saim Ayub, I suppose, in this opening pair, because Saim goes all guns blazing. वो थोड़ा berserk होता है, scores his ballistic knocks, whereas Abdullah just kind of keeps it a touch conservative.
थोड़ा वो कॉशियस अप्रोच लेता है, सर्कमस्पेक्ट होता है वो, और वो देख के खेलता है. और पिछले मैच में तो नथिंग बॉल पे आउट हो गया था, एज्ड इट डाउन द लेग साइड टू द कीपर. इस मैच में तहम्मुल वाला नॉक था. 48 deliveries, unbeaten on 32. I didn't really require to go quickly because Saim was going ham at the other end. मगर एक चीज तुमने अगर नोटिस की अब्दुल्ला की, 4 बाउंड्रीज मारी हैं. एक तो मैच विनिंग शॉट थी, मगर जो तीनों पहली बाउंड्रीज थी ना उसकी, that came before, all were scored between the point and cover point region, and when he plays those shots off the back foot in that area, he looks really good. So that's a proper area of strength for Abdullah Shafiq. And at this point, if one of these guys has to go to make room for Fakhr, it would probably have to be Abdullah, no? Even though I love Abdullah. मुश्किल काम है. कश में डाल दिए मैंने तुम्हें. कश है तो है, लेकिन फखर को आना पड़ेगा वापस. कश ही करा दे यार. फखर को आना पड़ेगा. फखर को साउथ अफ्रीका वाली सीरीज में मैं सुनने को तो यही मिल रहा है कि वो खेल रहा है वो सीरीज. आना पड़ेगा. और अब अगर आकिब बॉल एरा में ही है तो आकिब क्या फखर को नहीं लाएगा? फखर को आना पड़ेगा. फखर तो आकिब का जानी नहीं होना चाहिए. जानी ऑफ द पॉडकास्ट आप लोग भी बन सकते हैं. यस सर, व्हाट अ सेगवे सादी, यू ब्रिलियंट बास्टर्ड. मैं बास्टर्ड बोल दिया अभी फजूल में, लेकिन आप जानी बन सकते हैं. तू मैंने गाल कर दी है बास्टर्ड. अच्छा, आप लोग जानी ऑफ द पॉडकास्ट बन सकते हैं. डिस्कॉर्ड चैनल है वो, उसके अलावा डिस्कॉर्ड सर्वर भी है हमारा प्रो स्पोर्ट्स का, जिसपे कोई भी एवरीवनस ओपन टू जॉइन इट. लेकिन जो जानीज ऑफ द पॉडकास्ट चैनल है वो स्पेसिफिक हमारे जो जानीज हैं उनके लिए है. उसके बनने के 2-3 तरीके हैं. सबसे पहले पेट्रियन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं. उसके अलावा ईजी पैसा है, 0319360255 इज़ द नंबर. उसके अलावा बैंक अकाउंट डिटेल्स चाहिए तो मुझे या प्रो स्पोर्ट्स को डीएम कर दें ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे. बहराम को ना करना प्लीज यार, मुझे मत करना. आपके आ जाते हैं साथ की तरफ ही आपको टोरूंगा. हाँ, और अगर वो भी नहीं है बहराम तो फिर क्या कर सकते हैं? इफ यू लिव अंडर अ रॉक एंड डू नॉट हैव ऑनलाइन बैंकिंग, तो यार मैं और साद इस्लामाबाद में रहते हैं. इस वक्त तो आना थोड़ा मुश्किल होगा, मगर बेहतर टाइम होगा आप आए इस्लामाबाद. इधर E11 मरकज में, E11-3 में हमारा ऑफिस भी और स्टूडियो भी है. आके मुंह पे मारे 1500 रुपए हमारे, ठीक है. और आपको महीने के लिए पर 1500 की पेमेंट जानी ऑफ द पॉडकास्ट बना देंगे. ऑफ कोर्स देयर आर अदर वेज टू बिकम अ जानी ऑफ द पॉडकास्ट. यू कैन बाय अस एन ऑथेंटिक स्पोर्ट्स जर्सी. पाकिस्तान क्रिकेट की बस मत हो, क्योंकि वो रेडली अवेलेबल है. मगर कोई भी स्पोर्ट हो, कोई भी टीम हो, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, डजंट मैटर. इफ इट्स ऑथेंटिक एंड नॉट नॉक ऑफ, यू विल बिकम अ जानी फॉर 6 months per jersey. And I highly encourage you to become a जानी of the podcast, because यार we are trying to promote intelligent cricket discourse. हमारी mission statement है that we want to change the landscape of sports coverage in Pakistan. Sensationalism और मसालादार खबरों से हम लोग जाना चाहते हैं दूर. और we want to enrich your sports watching content through the podcast and the chat, but we want you to come and enrich ours. We're not know-it-alls. We're students of sport. हम constantly सीख रहे होते हैं. We want to be challenged तमीज के दायरे में. बहुत academic और learned community है वो already. आप कोई भी racism, misogyny, discrimination या abuse, इन चारों चीजों में से कुछ भी करोगे आपको सीधा कट देंगे. We have zero tolerance for this kind of bull crap. And I'm really grateful to all of our current Janis. बहुत ही अच्छे लोग हैं, अक्लमंद लोग हैं, और पता है बहुत मजा आता है उनसे बात करने का भी. आई लुक फॉरवर्ड टू ओपनिंग दैट चैट. एंड जस्ट टू काइंड ऑफ रीइटरेट बिफोर आई क्लोज दिस सेगमेंट ऑफ, ये पैसे यार मेरी और साथ की जेब में नहीं जाते. वी डोंट पॉकेट इट. These funds go towards making this podcast financially feasible. And if this podcast is a financial success, we can bring even more grade A content to your screens. और यार गलतियां हमसे होंगी, हुई भी हैं. ओनरशिप लेंगे, आप भी अकाउंटेबल रखो हमें, हम भी अकाउंटेबल रखेंगे अपने आप को, एक्नॉलेज करेंगे. विल ओन अप टू देम इसी शो पे, ठीक है. मगर एक प्रॉमिस आपको ये है कि जहाँ तक प्रेपरेशन, होमवर्क और तैयारी की बात आती है, वी विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड. कोई कसर नहीं छोड़नी. और सादी क्या कहते हैं, तू हैशटैग सीधा टेक ओवर याद रखो. 2-1 सालों में जब प्रो स्पोर्ट्स बहुत ऊपर पहुंचा होगा ना, आप अगर आज जानी बन जाओ, यू विल बी ए पायनियरिंग मेंबर ऑफ आवर फैमिली. एंड या वी फील रियली गुड अबाउट दिस वेंचर. एंड आप लोगों से प्यार भी बड़ा मिल रहा है यार. बड़े व्यूजियां काफी दे दी, व्यूजियां मिल गई हैं. अच्छा, इवन ऑन दिस डैम्प डे वी आर हियर सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू बिकॉज़ यू स्टिल डिजर्व क्रिकेट कंटेंट. अच्छा, स्क्वाड तो आ गया मेरे पास, लेकिन एक और अनाउंसमेंट है. दी ओरिजिनल्स की. ओरिजिनल्स जूते पैराम ये लोग ले सकते हैं. जूता प्यार जूता प्यार कीता है तू. Check out these shoes, theoriginals.com.pk पे जाओ. बड़ा खूबसूरत जूता है यार. ओ शादी से तो गिर ही गया है. Shoe so good he dropped it. लेकिन फिर भी देखो, चेक करो, कुछ हुआ नहीं ऐसे. अच्छा, और मजे की बात बताएं आपको, दिस इज नॉट ब्रांड न्यू. ओरिजिनल्स का
business model ये कि they take pre-loved shoes, Pre-loved. not used, not Yeah. second hand, pre-loved shoes, and then they refurbish them and then they sell it to you at a discounted price. वैसे भी बहुत कम use हुए होते हैं, it's not like they run to the ground or anything. और यार मतलब आजकल की इकोनॉमी में जहाँ पे अच्छा स्नीकर खरीदने में 20,000 निकल जाते हैं, वहाँ अगर आपको आधी प्राइस या 40% की प्राइस पे वो जूता मिल रहा हो, आई थिंक इट्स अ नो ब्रेनर. सो मोर पावर टू ऑल ऑफ दीज एंटरप्रेन्योर्स. और जो भी है, कौन है, who's the guy? गाय सोप. गाय का नाम है फराज. ठीक है, कराची में होता है ये. कराची के लोगों में. और बहुत अच्छा इनका इनिशिएटिव है और आप लोग भी ये जूते ले सकते हैं. theoriginals.com.pk पे जाएं और वहाँ पे डिस्काउंट कोड डालें ProSports10. ये लगा दे सामने. सो यू गेट अ 10% डिस्काउंट ऑन दीज शूज. Yeah. और अच्छी डील है और जूते बहुत ज़्यादा वेराइटी भी है इनके पास. ये वाला जूता एक्चुअली मुझे बहुत पसंद आया. मसला यही है मेरे साइज में नहीं है, वरना मैं ले लेता. सो इसकी प्राइस 7500 है. और भी हैं जूते यार वाकई या 7500 का तो आजकल हॉटपॉट आता है. तुम्हारा क्या साइज है? यार मेरा साइज हर जगह पे फर्क होता है, बट तू किस वाले उसमें पूछ यार रहा ये है? यूरोज हैं, आई थिंक 42. 42 ही मेरा साइज है. मैं ही ना ले लूं ये जूता. ले ले. आई एम नॉट अ वाइट शू गाय दो. यार वाइट शूज अच्छे लगते हैं. हाँ, I've had white shoes in my life, but फिर मुझे बड़ा अफसोस होता है जब वो गंदे हो जाते हैं. और वो हो जाते हैं गंदे. लेकिन साफ भी हो जाते हैं. हाँ, साफ हो जाते हैं. और प्लस लाइक दिस शू इन पर्टिकुलर लुक्स रियली नाइस. ये काले में भी है हमारे पास, बाय द वे. वो वाला दिखाया करो, वो ज्यादा प्यारा है. नहीं, ये बहुत खूबसूरत है. अच्छा, खूबसूरती है इसकी. और भी हैं दो वो पड़े हुए, वो भी ले आएंगे. हाँ, वो भी दिखा देंगे अगली दफा. आपको सारे जूते दिखा देंगे. या अच्छा, अभी क्रिकेट पे आ जाए. नहीं, there's one more thing. नहीं, वो एंड पे करना. अच्छा, वो तो मैं एंड पे कर रहे हो. You're saving the giveaway for last. गिव अवे अनाउंसमेंट जो है कि कौन जीता है, वो हम लेटर ऑन इन द पॉडकास्ट करेंगे. इसका टाइम स्टैम्प भी नहीं डालूंगा, अब ढूंढते रहो. अच्छा, कमिंग बैक टू द क्रिकेट. सादी पिछले मैच में बहुत स्लो सरफेस थी. इस वाले में भी स्लो थी, बट इट वाज बेटर फॉर बैटिंग, वाज़न्ट इट? हाँ. आई एम नॉट सेइंग कि बहुत कोई बेहतर बैटिंग ट्रैक था, मगर इफ पाकिस्तान मैन वो लास्ट मैच में वो 205 कर गए थे. ये भी तो है ना. जिम्बाब्वे स्कोर्ड लेस, पाकिस्तान स्कोर्ड well, chased down the target without losing any wickets. I think it was a better batting surface than the last strip. It was spin ज्यादा हो रही थी मेरे लिहाज से. हाँ, मगर first inning से ही ब्रेक करने लगे. बैट पे बॉल थोड़ा बेहतर आ रहा था. But it was still on the slow side. So credit to Saim Ayub and Abdullah Shafiq for chasing that target down the way they did. Also, यार, let's talk about तुमने ऑलरेडी बात कर ली थी कि क्या कहते हैं, हसनैन और हसीब जो हैं, they went out for Tayyib and Abrar, who were both making their debuts, right? Now, अब आगे जितने मैच आ रहे हैं. डेब्यू फॉर तैयब, आई डोंट थिंक. नहीं, तैयब का डेब्यू नहीं था. नहीं, अबरार का था. तैयब खेला हुआ है. हाँ. ओडीआई खेला हुआ है. मुझे नहीं याद पड़ रहा. खेला हुआ. मुझे जहाँ तक याद पड़ रहा है कि तैयब का डेब्यू था. नहीं, बता रहा हूँ तुझे मैं. नहीं. तैयब खेला हुआ है भाई. चल तू चेक कर ले. मैं वही कर रहा हूँ. अभी अवाम के कमेंट्स आने लग गए होंगे, गालियां भी पड़ी होंगी. मगर ये बातें जाके आप आलिया से कर लिया. अच्छा, he hasn't played. Yeah, there you go. Damn. Saad has been proven wrong. Damn. T20 खेला हुआ. हाँ, T20 तो मुझे याद है. I remember in green, और वो गंदी वाली ग्रीन जो हमारी वनडे की थी इससे पहले, उसकी वो सब फील्डर होगा ना. Probably. ऐसा कुछ सीन चल रहा होगा. खैर, I like the fact that Pakistan are handing out debuts on the regular right now. And आपको पूरे तरीके से अपनी सारी रिसोर्सेज यहाँ पे ट्राई करनी है. So that's a good move, right? इस दफा तो the lineup even made sense. पिछले मैच में हमने बड़ी तनकीद की है कि आप एक्सपेरिमेंट करो, मगर दिमाग लगा के सोच समझ कर कोई साइंस और कोई मेथड बिहाइंड द मैडनेस हो. यहाँ पे था. और रिजवान लुक रियली हैप्पी जब वो साइम के लिए तालियां ही बजा रहा था. ही लुक लाइक अ रिलीव्ड मैन. आकिब वुड बी अ रिलीव्ड मैन as well, because Pakistan have drawn level now. They have never lost an ODI series versus Zimbabwe ever, and they wouldn't want to break that record as well. इस साल में ऑलरेडी बांग्लादेश वाला हो चुका है. कभी टेस्ट मैच नहीं हारे थे, वो घर पे स्वीप हो गए टेस्ट सीरीज में. तो ठीक है, इवन दो आई थिंक कि दीज गेम्स डोंट मैटर मच, पाकिस्तान को ये सीरीज हारनी नहीं चाहिए. एंड नाउ देव सेट देमसेल्व्स अप वेल फॉर डिसाइडर ऑन व्हाट थर्सडे, एंड पाकिस्तान शुड गो ऑन एंड विन दैट. दे शुड स्टार्ट एज हैवी फेवरेट्स, आई वुड से. और हाँ यार सादी, मुझे बता कि पिछले मैच में तो चिल्ड्रन कैंसर अवेयरनेस डे था. इस मैच में पाकिस्तानियों ने अभी भी, पाकिस्तान प्लेयर्स ने ऑरेंज टोपियां पहनी हुई थी, those orange caps. I don't know. What was the reason behind that? Maybe by choice, yeah. I mean, I don't mind them. They kind of look cool. Maybe just in Zimbabwe. Maybe. Yeah, but पता नहीं, थोड़ी फील आ रही थी मुझे. मैं तो कहता हूँ जिस मुल्क जाओ उस कलर की टोपी पहन लो. पर जिम्बाब्वे का कलर ऑरेंज तो नहीं है. I mean, डच टोपियां थी.
किट तो ऑरेंजिश ही है ना। वो रोहेल नजीर ने भी तस्वीर लगाई हुई थी अपने इंस्टाग्राम पे किसी श्रीलंका ए प्लेयर के साथ, दे हैड एक्सचेंज्ड कैप्स। नाइस, जिसका वो भी टूर कॉल ऑफ हो यार गया। वो जाहिर है टूर कॉल ऑफ होना है यार, जिस तरह के हालात चल रहे हैं। अभी तो तुम्हें चैंपियंस ट्रॉफी का देखते जाओ क्या होता है। हाँ 29 नवंबर को डिसीजन होगा, एंड whilst some people have used this as cloud chasing techniques on Twitter, the point remains that this doesn't bode well for Pakistan, No. right? ये तो कोई अच्छा साइन नहीं है, और बहाना तो ज़रूर मिलेगा एक तरह का पाकिस्तान से लेकर जाने का, मगर फिर क्या कह सकते हैं यार। वो फारिस शफी ने ठीक बात की थी अपने गाने में, कौन से वाले? इंतहा पसंद से हैं हम सब और हमारे मंसूबे सारे, कोई तो जवाब दे, कोई तो जवाब दे, कोई तो जवाब, यप 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 यप, कोई तो जवाब दे दे तू, अरे कोई 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 कोई, क्या है आखिर इस फसाद की जड़। आगे ना ही गाओ तो नहीं तो आगे थोड़ा सा और जा सकता था। एक और उसकी वो बड़ी फिट लाइन थी यार, किस किस्म के अशरफुल मखलूकात हैं हम, जरा आगे बात तो सुन, किसी तरह रोकते ये पागलपन, ये कत्ल गारत बम, ये बेकार की जंग। What a line. गालियां में देता फिर आदत। बस यार रुक जा भाई। I'm sorry I keep coming back to it. It's just such a dampener. अच्छा T20 की जो हम बात कर रहे थे ना स्क्वाड की, तो उमैर बिन यूसुफ है। उमैर बिन यूसुफ है तो चलो उसको फिर दो चांस। उमैर बिन यूसुफ, हसीबुल्लाह एंड उस्मान खान एंड साहिबजादा फरहान। I would want to give Umair bin Yusuf all 3 games in that T20 series, but खैर उसके लिए हम प्लान कर रहे हैं वापस लाइव जाने के लिए। हाँ हसीबुल्लाह भी खेले, हाँ लाइव आएंगे इंशाल्लाह संडे को। Yeah, so hopefully if all things remain well, you guys can expect both Saad and myself to be on that live, which a lot of you have enjoyed. तो we enjoyed it as well. हमें बड़ी फील आती है मजा यार। आया था। पता है it's different. जब हम पॉडकास्ट से बैठते हैं ना तो हमारा गेम फेस हुआ होता है। We have overloaded information in our brain and we are trying to communicate it to you in the best possible way, in the best possible tone. For me and Saad, tonality matters. It is of paramount importance. अगर आप ये पॉडकास्ट फॉलो करते तो आपको इस बात का अंदाजा हो गया होगा। मगर फर्क पता है क्या है, लाइव जाते हैं ना तो वो अजीब कैंडिड फील्स होती है। वो तो फिर कमेंट्री कर रहे हो, तुझे छेड़ होता हूं मैं साथ साथ, बीच में कमेंट्री चल रही होती है, लोगों से इंटरेक्शंस चल रहे होते हैं, वो मजा आता है। इट्स अ लॉट ऑफ फन एंड यू नो वी डोंट नो हाउ वी विल बी एबल टू स्केल अप प्रो स्पोर्ट्स इन द फ्यूचर, बट आई वुड लव टू हैव लाइव्स एज मोर ऑफ अ रेगुलर फीचर, लाइक मे बी इवन अ वीकली लाइव, अ Q&A सॉर्ट ऑफ सिचुएशन विद यू गाइस। करेंगे फिर, हम बहुत ज्यादा प्लान्स हैं मेरे दिमाग में, ऑफ कैमरा डिस्कस करेंगे। वो वैगन व्हील करता ना जायरेड, प्रो स्पोर्ट्स शुड हैव इट्स ओन वैगन व्हील। उसका नाम क्या रखें? वो तब की तब सोचेंगे। वैगन व्हील तो नहीं रख सकते। वैगन व्हील तो नहीं रख सकते। Also, I should ask him what that means. Also, यार, Good Areas fans, Varun Alvaconda has made his debut. Go check him out. He's also an honorary Jani of this podcast. Love you. लगा दे फिर से यार वरुण की तस्वीर। यार तुम एडिटिंग काम ही बढ़वाते रहते हो यार। बस तू लगा दे, यहाँ पे वरुण ने देखें प्रो स्पोर्ट्स की जर्सी पहनी हुई है, पाकिस्तान वाली, टाइम नोट कर ले यार। पाकिस्तान वाली जर्सी जो आप भी खरीद सकते हैं बाय द वे। हमें लगानी चाहिए वो जर्सी यहाँ पीछे। लोग वैसे ही बाबर की जर्सी पे तपे रहते हैं तो हम उसके साथ लगाएंगे। वो नहीं उतरी, मैं बता रहा हूँ, जितनी गालियां देनी है दे लो। अपनी मर्च तो हमें प्रमोट करनी चाहिए, वो वैसे बिक नहीं रही। वो असल में ना यार हमने बनवा ली थी, मगर वो आई उस टाइम पे जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया था। टाइमिंग बहुत गंदी, टेरिबल टाइमिंग, सो दैट डिडंट क्वाइट वर्क आउट। अच्छा, so we've spoken about the batting, how in this game it was as per the demands of modern cricket, and we're really happy with what we saw. Let's talk about fielding for a bit. फील्डिंग की यही बात करनी है यार। कामी जी ने जो ड्रॉप किया था यार, I thought that should have been taken. ये एक मसला है पाकिस्तान के साथ कि ये पोजीशनिंग ठीक नहीं करते अपनी फील्ड में। कामी जी जो था वो बहुत आगे आया हुआ था। उस दिन मुझे याद है अब्दुल्ला शफीक आगे आ नहीं रहा था, वो डाइव नहीं मार रहा था, पीछे मारता। और कामी जी, मे बी सम ऑफ यू माइट नॉट कैटेगराइज दैट as a dropped catch. That was a dropped catch. I would categorize it as a dropped catch because he was out of position and the ball just kind of hit his hands. मुझे पता क्या याद आ गया था? क्या? छोड़ा भी आसिफ अली, हारिस रऊफ की बॉलिंग बताना। मैंने कहा फिर इसे चंट पड़नी है कामी जी को फिर से। यार इस तरह नहीं खेलना चाहिए, वो गलत किया था, बहुत गलत। हारिस रऊफ ने बहुत गलत किया था and he did apologize from what I remember. कोई एक उनकी तस्वीर भी आई थी, वही उसने कोई तप में नहीं किया था मुझे पता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। वो एड्रेनालिन उसका पंप हो रहा होगा, प्रॉब्ली फ्रेंड्स उसने वैसे ही नहीं, इट लुक्ड बैड। बट एनीवे कामी जी यार, दैट इज नॉट अ मिस्टेक यू कैन मेक टू फ्रीक्वेंटली बिकॉज कैचेस तो आएंगे खास तौर में डीप पे, और इफ यू पैरिंग देम फॉर 6 वो तो चलो इतना हर्ट नहीं। रेगुलरली कह रहा हूँ, वैसे जनरली बड़ा अच्छा फील्डर है कामी जी। हाँ, और क्लोज इन फील्ड मुझे बेहतर लगता है
short leg or silly mid-on or silly point वगैरह chirpy character as well. very chirpy तंग character. कर रहा होता है. He's like that little bug in your ear. जो bzzz, bzzz कर रहा होता है. I like Kami ji, even though bat के साथ तो पिछली गेम में नहीं चला था. But yeah, उसमें तो that कोई भी नहीं चला था. we're nitpicking at this point. हाँ. देखो एनालिसिस हमारा काम है और वो कैच जो छूटा था उस पर मजा नहीं आया था क्योंकि it wasn't a matter of dropping the catch. No. It was a matter of wrong positioning, and that is something that Pakistan can easily work on. Yeah. Catch तो यार चलो कुछ छूटेंगे ही, No. उसका तो अब कुछ नहीं कर सकते, तो मगर खैर. इसका कर सकते हैं. That's why this needs to be highlighted. And Sean Williams also dropped Abdullah on 7, albeit difficult opportunity, but he लेकिन फिर भी वो भी पहुंच गया था. वो भी लेना चाहिए. हाँ पहुंच गया था और इस तरह के कैचेस यार इंटरनेशनल क्रिकेट में पकड़ने होते हैं. Not that would have made a difference. Zimbabwe would have still lost. And it's interesting for them, right? They won the first ODI convincingly, Zimbabwe. और एकदम से people were talking about it. Yeah. रेन आई, फर्क नहीं पड़ना था उससे कोई भी. ये पिछले पॉडकास्ट में बात हुई है. Now they've gotten or have been handed a soul-crushing defeat. The sort of defeat that really takes the mickey out of you. Yeah. How do they respond from this defeat? Because honestly, ऐसी बात नहीं कि वो जीत नहीं सकते. जीत तो सकते दिखा चुके हैं वो पाकिस्तान को कि वो जीत सकते और पाकिस्तान हार भी सकता है. वो ना जीते हम हार सकते हैं. हाँ, absolutely right on the money with that one. एक दो positives थे. अगर पूरी सीरीज में देखो तो मुजरबानी निंगरावा, ठीक है, सिकंदर रजा बट इज ऑलवेज गोइंग टू बी एन MVP फॉर देम. और फिर शॉन विलियम्स विद द बॉल वाज अ पॉजिटिव. आई वाज रियली इंप्रेस्ड विद डियोन मायर्स. ही वाज ऑलराइट. उसने 33 किए बट ही वाज द टॉप स्कोरर फॉर जिम्बाब्वे. देयर वाज जस्ट सम sumptuous drives in there. मतलब बड़ा खूबसूरत फ्रंट फुट पे आ रहा था, बहुत प्यारा खेल रहा था एंड तेज खेल रहा था. That's something that will excite Zimbabwean fans. I don't know, मुझे हाँ अच्छा खेल रहा था, लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ रायन बर्ल क्यों नहीं है इनके. हाँ, रायन बर्ल क्यों नहीं है? And you know T20 में है वो. मवूटा की जगह क्यों नहीं है? हाँ exactly. मवूटा को पेल के पागल किया हुआ था पाकिस्तानी बैटर्स ने. He was just एक पॉइंट पे तो साइम अयूब पड़ ही गया था उसे ब्रो. वो सिकंदर रजा भी आके उसे समझा रहा था यार इस तरह बॉलिंग कर इजी हो जा. वो बिल्कुल डिफ्लेट हो गया था. मवूटा बेचारा looked completely out of place and I agree with you. Ryan Burl is a much better option than him, especially for that position as well. You can bat him in the lower order, you can get some overs out of him, especially when you've got people like Sean Williams and Sikandar Raza Butt who can roll their arm. Also, Wesley Madivere is another Zimbabwean player. वो तो साथ wrist spin भी कराता है ना. बड़ा talented player. Or he can bat aggressive as well. So I am a bit surprised to not see some of these players in Zimbabwe's team because सब लोग कहते हैं वो जिम्बाब्वे वो यार बीच में इनका ग्राफ थोड़ा ऊपर चल पड़ा था. Dave Houghton की कोचिंग में they were doing quite well. We highlighted how well their new ball pair is. And how well कह दिया how good their new ball pair is. ये तीन इनके जो मिडिल ऑर्डर बैटर्स हैं ये बड़ा अच्छा कर रहे थे. ग्रेग अर्वाइन, शॉन विलियम्स एंड सिकंदर रजा. हाँ, और खैर पुराने जमाने में चले जाओ तो हैमिल्टन मासाकड्जा was a great player. But look, all I'm trying to say is that Zimbabwe do have some talent and they are very very well capable of winning games of cricket. Yeah. इनके भी स्ट्रक्चरल इश्यूज चलते हैं, इनके भी फड्डे चलते रहते हैं, इनको भी पेमेंट नहीं मिलती, इनकी भी बेचारों की यही बकवास चलती है. इट रियली डज हर्ट मी दैट वो जो 90s वाली जिम्बाब्वे थी वो कभी उस लेवल पे पहुंच ही नहीं पाई. They had some great players. Neil Johnson, Heath Streak, the Flower Brothers. You had Sean Irvine in there, Andy Bligno and Sean Irvine were so underrated, bro. Henry Olunga. ओए. Pommy भी था. और who was that chicken farmer? 92 के वर्ल्ड कप में जिसने इंग्लैंड को हराया था, मैं नाम उसका भूल गया हूँ. वी डिड अ पॉडकास्ट ऑन हिम, Jared and I completely forgotten his name, but Zimbabwean cricket was on the rise in the 1990s. Then of course Dougie Marillier was there. 2003 maybe we all remember what happened and that kind of sent them back like 10 years. और फिर उसके बाद 10 years. हाँ, उसके बाद बीच में white players weren't allowed and then of course टेस्ट क्रिकेट से निकाल दिया था. फिर वो वापस आए. उसके बीच में भी they had some good players. टिंडा टाइबू था यार. और मुझे याद नहीं आ रहा. हैमिल्टन मासाकाड्जा भी तभी आया था. एल्टन चिगम्बूरा था यार. Yeah. He also played the PSL. So yeah, they've had some quality players. Prosper Utseya. Yeah. पीछे चले जाओ थोड़ा और Ray Price. Yeah. So Zimbabwe is, or Rhodesia formerly, is a country which does have cricketing talent, but वही resources की बात आ जाती है. Game time, structural issues. They don't really get to play a lot. So I hope that चलो पाकिस्तान तो उनको खेलती रहती है, इससे चलो उनको कोई फायदा हो जाए. And based on whatever I've seen on the telly,
लोग बड़े अच्छे लगते हैं यार मुझे जिम्बाब्वे के. होंगे. I don't know, जोहा से पूछना पड़ेगा. जोहा जिम T10 करके आई है ना. She was what सोशल मीडिया की हेड थी वो. उससे शायद मैं थोड़ी रिपोर्ट लेता हूँ. बट I would love to travel to Zimbabwe. हाँ यार इतनी खूबसूरत जगह लगती है. वो विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे में नहीं है? I think so. वो दिखा रहे होते हैं पैकेजेस में ना. बहुत खूबसूरत. अच्छा, speaking of which, did you catch Eddie Rainsford on the com box or on comms? नहीं क्या? यार अच्छी कर रहा था. मुझे Ed Rainsford याद है उसके playing days से. I liked his commentary. It was quite nice, and you know, Pommy भी तो ऊपर आया है. So maybe there is a path here for Ed Rainsford as well. Maybe he can. Well, Pommy तो मेरे लिहाज से one of the top commentators है आजकल. I love him. मेरे top 5 में नहीं आता. आता है. But I like Pommy. आता है. I don't mind myself some Pommy. And you know. वो चलो साउथ अफ्रीका की कमेंट्री करने लग गया जिससे ज्यादा प्रोपेल हो गया. Obviously उसको पैसे भी ज्यादा ही मिले होंगे ना. Absolutely. और वैसे भी you know क्रिकेट भी तो नहीं हो रही थी मेरा कॉलीग है Zimbabwean CS Chiwanza who does live in South Africa now. So you know a lot of these people do support both teams. And Africa में आपको पता ही है, अगर आपको 2010 का FIFA World Cup याद हो, it's time for Africa में पूरा अफ्रीका घाना के पीछे था. सामिना मिना and क्या वक्का वक्का ये नहीं मैंने देखी है वो लिंगी लिंगी बार्डो. हाँ मैं तो कहता हूँ तुम्हें कि लिंगी लिंगी बार्डो वाला बॉय इन अ सिचुएशन इन हेवन ये वाला बॉय यूं और फिर वो अर्थग्रुल वाला बच्चा करता खुद गाता है वो. एक और भी बंदा था इसमें. दीज गाइज आर अनसंग हीरोज. आई लव देम. बात में क्या करता साथी तूने बिल्कुल गाना गाकर ना मेरी पूरी ट्रेल ऑफ थॉट जो है ना आ जाएगी वापस. नहीं तो किस चीज की बात करते थे मुझे नहीं याद. हाँ घाना पूरा अफ्रीका उनके पीछे था. and Luis Suarez was public enemy number 1 when he played goalkeeper. and Asamoah Gyan missed that penalty. I love how this podcast just completely segues into non-cricket stuff at times. Love it. That's what gives me energy honestly. काफी मजा आता है मुझे करने का. अभी कोई देख रहा होगा ना ये पॉडकास्ट शुरू हमने सही somber नोट पे की और आहिस्ता बेहतर हो. somber feelings है मेरी भी तुझसे बात करना सेम यहाँ पे जब मैं बैठता हूँ और ये वाली स्पेस हम एंजॉय करते हैं. we literally create the magic on the spot. It does uplift me and I honestly needed this. क्योंकि मैं तो बता रहा हूँ पूरा दिन कल like यार my siblings went ठीक है अपने spouses के साथ. मेरी फटी पड़ी थी शादी. I was scared. I'm sure, man. And I can't even discuss the accounts क्योंकि that would put me in danger. वीगो आ जाएगी. हाँ प्रॉपर खतरा है. बट प्रॉपर पैक हुई भी थी. ऊपर से मैं बच्चों को देख रहा था, साथ में क्रिकेट कवर कर रहा था. यार नहीं हो रहा था मुझसे. बड़ा मुश्किल था. आज सुबह उठा हूँ डिफ्लेटेड. सो तू है ना फिर you are the क्या कहते हैं उसको, you're my Advil. अच्छा. I could have come up with a better analogy. Advil बना दिया. Yeah. अच्छा खैर और क्या बातें करनी है. और यार ये बात कर सकते हैं कि अनफॉर्चुनेटली 2 इंजरीज हो गई हैं. हाँ. शाहनवाज दहानी को एंकल इंजरी हो गई है और अहमद दानियाल pulled up his hammy. Yeah, the forgotten Kalandar Ahmed Danial has pulled up his hamstring. So that's unfortunate because we wanted one of those guys to play at least एक गेम में मिली. मगर एक अच्छी बात भी हुई है. इन दोनों की जगह स्क्वाड में आए हैं अब्बास आफरीदी और जहांदाद खान. बोथ 2 players जो पाकिस्तान यूज कर सकती है डिसाइडर में. यूज करना है कि नहीं? मैं तो खिला रहा हूँ जहांदाद को. जहां डैडी शुड प्ले बिकॉज यू गेट द न्यू बॉल आउट ऑफ हिम ahead of Jamal. I would take both Haris Rauf and Jamal out. और actually नहीं, Abbas Afridi. हाँ ना, Jahandat with the new ball alongside Abrar. Abbas Afridi in the middle overs if I need won't be. take Haris Rauf out. यार you need that do experience. You do need that. यार Abbas Afridi was clicking high 130s. और clicking कह रहा हूँ क्या हो गया, clocking. एक्सपीरियंस चाहिए होता है. एक सारी नई बॉलिंग लाइनअप नहीं खिला सकते हो आप. एक बंदा तो होना चाहिए. या पता नहीं डिसाइडर है और आई डोंट नो आपने पेस पे इतना रिलाई करना नहीं है. लेकिन होना पता है क्या है, सेम टीम के साथ जाना है. या तो here let me give you a proposition. How about they go with Jahadad and Hasnain? नहीं. Are you fine with that? नहीं. यार हारिस रफू कुछ बिठा भी दो. कितना खिलाना है? इंजर करा के छोड़ना है? हाँ. क्या हो गया शादी यार? खेले क्या? I don't know, खेलेगा सही. इसके बाद क्या? अच्छा वो वैसे T20 स्क्वाड में. वही तो मैं कह रहा हूँ. T20 में बिठाओ ना. T20 में क्या जरूरत है? सब कुछ खिलाने की भी जरूरत नहीं है. I think ये वाला वनडे खेले उसके बाद T20 में बैठे. He's proven his worth in these run of games. यार ब्रो एक मैं हमेशा इस पर रहूंगा. एक सीनियर बॉलर चाहिए होता है. अच्छा. तो ये चोक कर सकता है. चलो यार ना तेरी ना मेरी. जहांदाद विद हारिस रऊफ फॉर द नेक्स्ट गेम. ठीक है. अब्बास आफरीदी की जगह जहांदाद मैंने इसलिए खिलाया यहाँ पे इवन दो अब्बास आफरीदी इज इन फॉर्म बिकॉज़ जहांदाद कैन बॉल विद द न्यू बॉल. और फिर लेफ्ट आर्म एंगल भी आ जाता है. और फिर
गेम टाइम ही मिल जाएगा इससे। Yes. और मैं तो पहले से चाह रहा था इसे होना चाहिए वनडे स्क्वाड में। और पता है वेरिएशंस उसकी भी अच्छी हैं। बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वन जहांदाद खान के पास भी है, नॉट जस्ट अब्बास अफरीदी, इवन दो आई थिंक अब्बास अफरीदी की बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वन बेहतर है। सो ब्लेसिंग इन डिसगाइज कह सकते हो, नॉट ब्लेसिंग इन मुजरबानी बट ब्लेसिंग इन डिसगाइज कि अब ये दो प्लेयर्स आए हैं जिनको आप एक्चुअली यूज कर सकते हो आखिरी गेम में। ऑब्वियसली ऑल दो स्पिनर्स प्ले, यू नो अब्रार गॉट अ 4 for on debut, अब्रार, फैसल अकरम, दोनों फैसल अकरम got a 3 for on debut, and then we haven't talked about सलमान अली आगा, जिसने 3 विकेटें ली, बैक टू बैक बेबी। 6 विकेटें हो गई उसकी हाँ, सीरीज 6 विकेटें 2 मैचेस में बैक टू बैक 3 फॉर्स। पहले क्या 3 for 40 और था, इस दफा क्या 3 for 26। हाँ, ऐसे ही है। What I really liked about those particular performances was that those wickets are top order wickets. हाँ, सिकंदर रजा को आउट किया था उसने। टेल वगैरह नहीं क्लीन की उसने बड़ी विकेटें ली हैं सलमान अली आगा ने, ठीक है। और ही इज टेकिंग दैट रिस्पांसिबिलिटी और शोल्डरिंग दैट रिस्पांसिबिलिटी एज वाइस कैप्टन, एंड wherever the track takes a bit of turn, I see him as a proper bowler then. Like वरना वो पार्ट टाइमर है, इस तरह वो a good fifth bowling option. समझ रहे हो? I'd still keep him as the 6th. You can split his overs with Saim now. Turning track पे if you split his overs with Saim, it gives you a lot of depth. बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। And then अगर आप if you like in the future want to chuck Shadab Khan in there, ठीक है, तो और डेप्थ आ जाती है। If he obviously regains his form, which I mean he's been doing well in the Qaid-e-Azam Trophy. तेरी बात भी ठीक है, कंपटीशन की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, but he is a standout player over there, right? हाँ, लेकिन फिर भी obviously it's good for him to get into that form line and length पकड़ ले तो फिर वो हो जाएगा। यार मैंने कुछ बॉलिंग देखी उसकी और गूगली अच्छी पड़ रही है उसकी। लाइन एंड लेंथ का उसका मसला था। The wrong uns are wronging on, और स्पिन नहीं हो रही थी। अगर वो चीजें हो जाती है तो फिर विकेटें आ ही जाती हैं, लेकिन फिर then again I need him to perform in a better competition. अब चैंपियंस T20 कप में I don't think so वो है स्क्वाड में, so I'm seeing him in the South Africa series making his comeback. Probably yeah, because इतना लंबा ले ऑफ उसको देना नहीं था इन लोगों ने। और अगर तुम्हें राशिद भाई की बात याद हो, when we discussed this exact point with him, he said कि शादाब खान को वो ये नहीं कह रहे थे कि तुम पूरा फर्स्ट क्लास सीजन खेलो, मगर तुम इतना तो खेलो ताकि तुम्हारी वो मोजो वापस आ जाए, रिदम वापस आ जाए। अच्छा, बाय द वे राशिद भाई ने एक और बात की है, उन्होंने बोला रिजवान इज अ स्टॉप गैप सॉल्यूशन, पाकिस्तान आर eyeing शादाब खान फॉर दैट कैप्टेंसी रोल। वी बोथ मेंशन्ड दिस व्हेन रिजवान गॉट द कैप्टेंसी के ओडीआई में तो हमें कोई मसला ही नहीं है, मगर T20 में इट्स नॉट एब्सोल्युटली आइडियल, ऑल्दो वी टेक इट एट दिस पॉइंट क्योंकि थोड़ी स्टेबिलिटी चाहिए। But moving forward, अभी of course World Cup बहुत दूर है। और यार if you look at how other teams treat captaincy, I often wonder कि पाकिस्तान इस तरह क्यों नहीं कर सकता। यार हर सीरीज में कोई नया कप्तान होता है उनका। लेकिन अगर 2026 के लिए आपने करना है T20 टीम को, तो फिर जिस तरह की गंदी आपकी टीम बन चुकी है ऑनेस्टली, तो फिर आपको पूरा फ्रेश स्टार्ट चाहिए होगा ना। और वो फ्रेश स्टार्ट आया नहीं है, और वो फ्रेश स्टार्ट अभी ही टाइम था उसका। आपने ओवरऑल की बातें की थी आफ्टर द T20 वर्ल्ड कप, बट वी सॉ मोर ऑफ द सेम। इट्स नॉट अबाउट द प्लेयर्स दैट आर प्लेइंग, इट्स अबाउट योर मेंटालिटी एंड अप्रोच, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स देयर आर ऑब्वियसली सम प्लेयर्स हु सूट दैट फॉर्मेट, और फॉर्मेट कह रहा हूं मैं, सूट दैट ब्रांड ऑफ क्रिकेट दैट यू वांट टू प्ले, जिनको आप खिलाते ही नहीं हो। द फखर जमान एंड साइम अयूब्स एंड छोटा मोहारिस, वो तो है ही नहीं स्क्वाड के अंदर, तो ये चीजें एड्रेस करनी पड़ेंगी। बट आई डोंट माइंड दैट। मैं वही सोच रहा था कल जब वो आज सुबह जब GNT ने वो सवाल पूछा था IPL वाला, तो मैं सोच रहा था कि कौन है प्लेयर, बैटर कौन है उस मोल्ड का। इन 3 के अलावा मुझे कोई नहीं समझ आ रहा था। Yeah, I mean शादाब खान अगर बॉलिंग अच्छी करा रहा हो तो he would go for big money as well. No big money though. नहीं, he'd be a good. He would go for Wanindu Hasaranga money. हाँ, इतना तो अगर उसकी बॉलिंग उस पे मैच हो जाए। I feel शादाब is a better batter than Hasaranga. हम पता नहीं कहाँ। Whilst I love Gaurav Nandan Tripathi, मेरा proper boy है वो, these conversations are futile. I have gotten over them. कि कौन होता तो कितना के बिकता, भाई नहीं, आप you're not welcome in the IPL, so just drop it, right? But then again, शादाब खान अगर हसरंगा से सिर्फ कंपेयर कर रहा हूँ, take the IPL out of the equation, obviously हसरंगा is a much better bowler than him. मुझे एक बात याद आ गई, मुझे बिल्कुल तो मैं नहीं सुन रहा, मगर तुम फिनिश कर। But शादाब खान is a better batter than हसरंगा. Yes, absolutely. Even though I rate Hasaranga as a batter as well. हाँ, हसरंगा कमाल T20 का प्लेयर है। उसके एटीट्यूड इश्यूज हैं थोड़े से, वरना तो वो बहुत फिट है। फिटनेस के भी कई बार थोड़े क्या बात याद आ गई यार, वो अर्ली डेज ऑफ हसरंगा's career, रिमेंबर श्रीलंका की C टीम आकर आपको स्वीप कर गई थी घर पे, हसरंगा की गूगली नहीं खेली जा रही थी आपसे, तो मुझे याद है खेली नहीं जाती। अर्ली डेज ऑफ हसरंगा में ना ज़ैनब अब्बास यूज्ड टू हैव अ YouTube चैनल, नॉट थ्रोइंग शेड एट ज़ैनब, आई लव ज़ैनब, आई थिंक के ठीक है गलती हुई है उससे, मगर वो प्रेजेंटर्स की जहाँ तक बात है वो दुनिया में टॉप की थी, ठीक है, टॉप की है। So, and I don't endorse the stuff that she said. That was absolutely wrong. But anyway, early days of her YouTube channel,
she was talking about हसरंगा and she called him हथरंगा और मैं और मेरे कुछ दोस्त हैं वो आज तक उसको हथरंगा ही बोलते आ रहे हैं हो जाता है किसी से भी हो जाता है हम भी करते हैं चीजें बट आई डोंट नो मेरे ज़हन में क्या मतलब वो भी हमारी तरह लिस्प कर रही हो कुलैफ की नहीं तरह आया ना इस दफा कुलैफ हसरंगा बोल रही हो जिम्बाब्वे का आया कुलैफ जिम्बाब्वे चल मूड तो तूने सेट कर दिया मेरा शादी इतना तो मैं कह सकता हूँ रुक जा इनका मूड भी ठीक कर देते हैं ना कर देते हैं Have we talked about everything we need to talk about? वो चलो वापस देख लेंगे तुम मूड ठीक करो मैं सोचता हूँ इनका मैं मूड ठीक कर दूं डी कोड का जो गिव अवे विनर है जो हमारा सिग्नल फॉर लाइट फोन था जो हमने कंपटीशन होल्ड किया था टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे जिसका सही आंसर था ऑप्शन बी पेस और काफी ज्यादा लोगों ने लिखा हुआ Obviously it was such an easy question जो आपको वीडियो एज सच देखने की जरूरत भी नहीं थी if you just follow this podcast you would know the answer if you follow cricket you would know the answer तो हमने उसे रैंडम पिकर में डाला और पता है जीता कौन है कौन सल्लू भाई जीत गए क्या मतलब सलमान खान लो भाई सल्लू भाई ने अपना वक्त निकाला और हमारे इस कंपटीशन में आया और अब वो फोन जीत गए कोड का ऑब्वियसली दिस इज अ डिफरेंट सलमान खान बट कांग्रेचुलेशंस टू यू सलमान खान प्लीज DM us on Instagram और Twitter या जहाँ भी और फिर हमसे ये फोन ले लो यार congratulations Decode Yeah. done well to win it and इस तरह की हम कोशिश करते रहेंगे और गिव अवे वाली चीजें करते रहें and we're always looking for sponsors so if you know somebody hook us up and I mean I'm happy for you Salman and I suppose I'm happy for Pakistan as well because वो पहला मैच हारने के बाद मोरल बहुत लो हुआ होगा Pakistan cricket team I'm happy for Pakistan cricket team. Yeah, I'm not happy for the nation. I'm very empathetic towards it. But yeah, I mean, chalo. Now you've set yourself up well for a decider, and Zimbabwe also will want to win it. They don't get to play a lot of quality teams very frequently. So जो उनको बीच में मिलती हैं वो चाहेंगे कि फिर वो थोड़ा अपना impression make करें वहाँ पे. And I am looking forward to that game. I am keen to see what the Surface will do this time. Roy or Robbie? क्या? Keane. Oh, wow, Sadi. I suppose Roy. He's one more, and I enjoy his punditry. He's funny. Even though Robbie Keane, तुम्हें तो खैर जहर लगता होगा क्योंकि वो Spursy है. मुझे तो Roy भी जहर लगता था. Very underrated man. Robbie Keane was a really good striker. Yeah, मुझे पसंद था. ऊपर से Irish है ना ये boys. दोनों? हाँ मुझे आयरिश लोग पसंद है मैं आयरलैंड जितनी दफा गया हूँ 2 दफा गया हूँ अब रॉय कीन मुझे बड़ा मजा आता है बंदा तो फनी निकला एंड पे जिस तरह कुछ किया था ना उसने क्या था वो यार बंदी ने कुछ बोला था मार्टिन हेयरवुड का वो वलीद ने मुझे भेजा था दैट वाज रियली फनी आई प्रेफर रॉय कीन टू गैरी नेविल दो डू यू प्रेफर रॉय कीन टू कैरा नहीं हाँ मुझे भी कैरा ज्यादा पसंद है आई नो कैरा कैन बी रियली अनोइंग बट इफ यू एक्चुअली थिंक अबाउट इट कभी आप उसको सुनो तो कैरा डज मेक सेंस कभी कभार और वो नेविल की तो ठीक लेता है नेविल तो आई रियली डोंट नेविल तो प्रॉपर मैन यूनाइटेड फैन बॉय बनकर आता है आई हैव द सेम इशू विद रियो फर्डिनैंड बाय द वे आई डू नॉट एंजॉय रियो फर्डिनैंड टॉकिंग अबाउट फुटबॉल का पॉडकास्ट नहीं कर रहे ठीक है ना यार क्या है तुम्हें कोई जल्दी है वेले हो तुम आगे तुमने सिर्फ ये एडिटिंग कर टाइम स्टैम्प वगैरह बनाने ओह माय गॉड यार टाइम स्टैम्प इज द मोस्ट अनोइंग वर्क इन द वर्ल्ड मुझे क्या बता रहे हो मैं तो बड़ी देर तक अपना कंटेंट खुद बनाता था बहराम हमने इसके बाद एक और शूट करना है इसलिए मैं जल्दी हाँ तुम तो बैक टू बैक जाना चाहते थे आपके लिए एक सरप्राइज पॉडकास्ट आ रहा है दैट विल एयर ऑन थर्सडे वी आर नॉट गोइंग टू गिव इट अवे दो थर्सडे गिव इट अवे नाउ नो गिव अवे कर दिया ना हमने सलमान खान congratulations to you Salman Khan and I think that pretty much wraps this up Sadia Pakistan winning this सीरीज जीत रहे हैं और कितना कन्विंसिंगली जीत रहे हैं are we getting a tight game are we getting a classic Pakistan making it harder for themselves game or are we getting a one-sided fixture like we got in the second ODI one-sided अच्छा I'm going to go just to spice things up it's going to be one of those games which Pakistan should win and then they'll put themselves in a situation where they are in trouble and then they'll still win it ये मेरी prediction है मगर honestly हम कुछ ज्योतिषी नहीं है ना ही हमारा काम है prediction करना these predictions are for fun ये कोई पेशेंट गोइयां नहीं दे रहे हम लोग ये मुझे सारे लफ्ज पता है कहाँ से आए हैं मेरी अम्मी सुनती हैं लोगों को YouTube पे and I'm always like banging my head against the wall but चलो at least she's not listening to I don't know some extremists आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन पे क्लिक करें सब्सक्राइब टू आवर चैनल बहराम मुझे हर जगह फॉलो कर दे हमारे जानी ऑफ द पॉडकास्ट बन जाए थ्रू पेट्रियन और इजी पैसा 0319360255 इज द नंबर उसके अलावा हमारी बूथियाँ पसंद ना आई हो तो स्पॉटिफाई और अमेजॉन म्यूजिक पे भी सुन सकते हैं डी कोड वाले भाई सलमान खान प्लीज हमें मैसेज कर देना और दी ओरिजिनल से जूते ले लेना प्रो स्पोर्ट्स 10 इज द डिस्काउंट कोड वील सी गाइस नेक्स्ट टाइम अंटिल देन
अल्लाह हाफिज And stay safe.